ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಶ್ರಾವಕರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪುನಃ ನಾವೀಗ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Om Namah Shivaya. Yesterday there were some questions, and now we are continuing. How does our mind come in harmony with our soul? How do we stop the conflict between doubts in mind and the positiveness of soul? यानी मन और आत्मा में तालमेल कैसे बने, ये प्रश्न है पहला. और फिर जो एक संघर्ष चलता रहता है मन में, शंकाएं उठती रहती है, उसको कैसे रोका जाए और आत्मा की सकारात्मकता को कैसे स्थिर किया जाए. तो पहली बात तो ये समझना होगी कि मन है क्या वस्तु. What is the mind? There has been an eminent professor of psychology whose books are nowadays very popular, Your Mind and How to Use It. In that book he has written, a certain professor started his first lecture by keeping something in front of those students and asking them, look at this. They all looked at that object, and then he used to say, now think about this. Whatever you can think about it. They started thinking, and suddenly he used to ask, now think about that which thinks. The students were astonished, and then the professor said that our subject is about that which thinks, and that is called mind. जो विचार करता है, जिसमें विचार उठते हैं, वो मन कहलाता है. जैन शास्त्रों में संकल्प विकल्प स्वरूपम मनः, मैं मेरा तू तेरा, ऐसी तरंग को अपने अंदर का कोई औजार है जो पैदा करता है मैं मेरा तू तेरा, संकल्प विकल्प अहंकार ममकार
ये मन है। और आत्मा क्या है? माइंड इज ए मैनिफेस्टेशन, ए पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर नॉलेज। मन जो है वो ज्ञान का आंशिक प्रकटीकरण है। इंद्रियों से भी ज्ञान होता है और मन उसमें अलग अलग प्रकार से इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सब अच्छा बुरा जो है ये मन का काम है। इंद्रियां क्या करती है? ज्ञान कराती है कि ये वस्तु ऐसी है। अब वो अगर वस्तु तकलीफ देने वाली होगी तो फिर जीव उससे दूर हटेगा, और अगर अच्छी लगेगी तो जीव उसके पास जाएगा और जुड़ाएगा। एवरी लिविंग बीइंग थ्रू आउट हिज और हर लाइफ continuously performs efforts to eliminate that which is unpleasant and accumulate that which is pleasant. Nothing else nobody does. You can just think about this. The whole life, what do? You accumulate whatever that is pleasant and you eliminate whatever that is unpleasant. And the life goes away like that. So mind is an instrument of our soul. Mind can calculate many things. It has the power of calculation. Mind can provide wisdom also. What is fair, what is unfair, what is acceptable, what is unacceptable, etc. मन आत्मा का एक यंत्र है, एक करण है, अंतःकरण इसको कहते हैं। वेदांत में अंतःकरण के 4 भेद हैं। उन 4 भेदों में से एक भेद का नाम मन है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वेदांत मीन्स द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, and that is different from Ved. Ved and Vedanta are not one and the same. They are different. Vedas are 4. 4 वेद होते हैं। वेदांत उपनिषद के सार को कहा जाता है। और जो न्यायाचार्य हुए वाराणसी आदि स्थानों के, वो कहते हैं, the philosophers, the great philosophers of Varanasi, etc., they say that Vedanta had originally evolved from Kshatriyas and Vedas came from the Brahmins. वेदांत जो अध्यात्म विद्या है, they call it Paravidya, and that क्रियाकांड they call it अपराविद्या। यानी पराविद्या शुद्धोपयोग रूप होती है और अपराविद्या शुभोपयोग रूप होती है। तो वो बोलते हैं कि वो वहाँ से आया, ब्राह्मणों से, और ये जो अध्यात्म है ये क्षत्रियों से आया। So as per Jainism, if we think about that, the Tirthankaras all were Kshatriyas. And primarily, they showed the path of Shuddhopayog. And those saints who were unable to perform Shuddhopayog were secondarily instructed to perform Shubhopayog. जो शुद्धोपयोग में असमर्थ थे उन साधुओं के लिए शुभोपयोग बतलाया। और दोनों का तालमेल लेकर ही चलना होता है, क्योंकि कोई बिरला साधु ही एक बार शुद्धोपयोग में स्थिर होकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती।
दीक्षा लेकर शुद्धोपयोग में गए, केवली हो गए, सर्वज्ञ हो गए, पर सारे साधु ऐसे नहीं हो सकते। इवन जिनकल्पी और स्थविरकल्पी, these are the two basic classifications of Jain monks. One of them is Jinkalpi and the other is Sthavirkalpi. Sthavirkalpis move with sanghs, their organizations, and Jinkalpi are alone. Jinkalpis perform the austerities of Tirthankaras, the prime liberators. They perform those austerities. वो उस तपस्या को करते हैं जिनकल्पी मुनि जो तीर्थंकरों ने की है, और स्थविरकल्पी जो होते हैं वो कई सावधानियां रखते हैं, वो ज़्यादा कठोर तपस्या आदि में नहीं रहते, वो संभाल करके चलते हैं। कठोर तो करते हैं, ऐसा नहीं कि कठोरता छोड़ दें। और आचार्य कुंद स्वामी और प्रवचन सार में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है कि दोनों चर्या का तालमेल जरूरी है। जब शक्ति हो तब कठोर, जब अशक्ति हो तब कोमल। अशक्ति में कठोर और शक्ति होने पर कोमल चर्या करने से पतन होता है। अशक्ति में कठोर करने से पतन कैसे होता है? आयु का क्षय हो जाता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है और आप मासोपवास का संकल्प कर लो तो मासोपवास तो पूरा नहीं होगा, जीवन पूरा होगा। और अगर शक्ति आपके पास विद्यमान है और आप कोमल चर्या करते हैं, if you are strong enough to perform difficult austerities and even then you are lenient, you are soft, then you become असंयमी। आपका संयम छूट जाता है अगर आप कठोर होकर के भी कोमल चर्या करते हैं तो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दोनों का तालमेल बनाकर चलो। जब शक्ति हो तब कठोर तप करो, जब शक्ति ना हो तब कोमल चर्या करो। कोमल कोमल में ही मत जाओ, कठोर कठोर में ही मत जाओ, दोनों में हानि होगी। इधर भी असंयम होगा, उधर भी असंयम होगा, क्योंकि कठोर तप से अगर मृत्यु हो गई शक्ति न होने के कारण तो फिर देवगति में जाकर असंयम होगा। और यहाँ पर कठोर तप करने की क्षमता होकर भी अगर कोमल करते रहोगे तो फिर शरीर सुख प्रिय हो जाएगा, वापस असंयम हो जाएगा। तो दोनों स्थितियां हानिकारक है। मन को आत्मा के साथ तालमेल में कैसे लाना, इसके लिए जैनाचार्यों ने विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन दिए हैं। पहली बात तो उन्होंने मार्ग किसको कहा है ये समझना आवश्यक है। मार्ग उन्होंने रत्नत्रय को कहा। मग्गो मोक्ष उवाओ तस् फलम होई निब्बाण। सिर्फ दो बातों का वर्णन जैन शास्त्रों में आता है, मार्ग और मार्ग का फल। तो बोला कि फल तो निर्वाण है और मार्ग यानी जो उसका उपाय है वो रत्नत्रय है। तो रत्नत्रय के बिना मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और रत्नत्रय के विषय में दो मत मिलते हैं शास्त्रों में। दो मत इस प्रकार मिलते हैं कि जैसे अष्टपावण ग्रंथ में चारित्र पावड़ के अंदर गाथा क्रमांक 18 में आचार्य कहते हैं सम्मदंसण पस्सरि जानदि नाणीण दब्ब पज्जाया सम्मीणय सद्दह दिय
परिहरति चरित्र जे दोषे। आत्मा सम्यक दर्शन से सत्ता मात्र वस्तु पर श्रद्धान करता है। सम्यक ज्ञान से उस वस्तु की पर्याय आदि को जानता है। द्रव्य गुण पर्याय ये सम्यक ज्ञान का विषय होते हैं। और सम्यक तो से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का श्रद्धान करता है। इसी प्रकार देखना जानना वो श्रद्धान करना होता है। और चारित्र से आचरण में उत्पन्न हुए दोषों को छोड़ता है। और चारित्र के आचार्य कुंद स्वामी ने दो भेद बतलाए हैं, एक सम्यक्त्व चरण और एक संयम चरण। और सम्यक्त्व चरण चारित्र सम्यक दृष्टियों के पास नियम से होता है, इसलिए प्रत्येक सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व चरण चारित्र की अपेक्षा चारित्रवान है। अब संयम चरण की अपेक्षा विचार करने पर केवल कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंज देश संयम को प्राप्त होते हैं और सकल संयम को केवल मनुष्य प्राप्त होते हैं, वो भी दिगंबर दीक्षा लेने वाले मनुष्य। तो इस तरह उन्होंने जो विभाग किया उस अपेक्षा से जो सम्यक तो चरण चारित्र है वो सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के पास होने के कारण वे सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तो चरण चारित्र के धारक होने से रत्नत्रय से युक्त है। लेकिन दिगंबर आमनाय के संपूर्ण वाङ्मय में शेष समस्त आचार्य एक स्वर से संयम चरण को ही चारित्र मानते हैं। सम्यक तो चरण का कहीं किसी ग्रंथ में अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। ये एक जानकारी दी जा रही है, क्या स्वीकार करना क्या नहीं करना इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। शेष सभी आचार्य एक स्वर से कहते हैं कि चारित्र असंयत अवस्था में नहीं होता। केवल कुंद आचार्य सम्यक तो चरण चारित्र की अपेक्षा से उसको रत्नत्रय स्वीकार करते हैं। तो मार्ग, अगर अपन अन्य आचार्यों के ग्रंथों को देखें तो वहां पर मार्ग के अंतर्गत वो अणुव्रत से ही सारी चर्चा प्रारंभ होगी, उसके पहले मार्ग नहीं मानेंगे। वो कहीं उल्लेख ही नहीं मिलेगा आपको। और आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों को देखें तो फिर उन्होंने सम्यक तो चरण की अपेक्षा से चारित्र को चौथे गुण स्थान में, जिनके पास अणुव्रत नहीं है महाव्रत भी नहीं है, उनके पास भी मार्ग को स्वीकार किया है। बस इतनी एक जानकारी की बात थी, आपके सामने रखी है। बाकी तत्वार्थ सूत्र की टीका जो आचार्य अकलंक देव ने की है, उसका नाम तत्वार्थ वार्तिक है। उसमें आचार्य लिखते हैं कि मोक्ष मार्ग केवल कर्म भूमि में होता है। भोग भूमि में ज्ञान दर्शने स्तः चारित्रम तो नास्ति। एकदम खुलकर बोलते हो कि भोग भूमि में ज्ञान और दर्शन तो है, जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके पास ज्ञान और दर्शन है। चारित्रम तो नास्ति, किंतु चारित्र नहीं है, एकदम साफ कहते हैं। फिर बोलते हैं कि कर्मभूमि क्यों कहते हैं? पूरी कर्मभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर चारित्र धारण करने का पुरुषार्थ शक्य है, अन्यत्र कहीं नहीं है। न देवों में, न नरकों में, न भोग भूमियों में, कहीं भी चारित्र नहीं हो सकता। फिर वही अकलंक देव तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र की व्याख्या करते समय, प्रथम सूत्र कौन सा है तत्वार्थ सूत्र का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस पर व्याख्या करते हुए वो तीसरे वार्तिक में लिखते हैं कि जगन्य चारित्र देश संयम में पाया जाता है।
अर्थात ये हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का मेल प्रारंभ होगा तो पंचम गुण स्थान से होगा। और फिर सबसे उत्कृष्ट चारित्र कौन सा होता है? यथाख्यात चारित्र होता है। तो वो कषायातीत वीतराग साधुओं में पाया जाता है, वीतराग छद्मस्तों में और वीतराग सर्वज्ञों में, सभी में यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। सिद्धों में ये चर्चा नहीं है। सिद्ध तो पार हो गए, संसार से पार हो गए। संसार में ये अवस्था होती है मोक्ष मार्ग की, और सिद्धों में तो मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये बात थी। तो क्वेश्चन ये था कि मन और आत्मा में तालमेल कैसे बनाए। तो उसका उपाय ये है कि पहले तो मन की भ्रांतियों को निकाल दें। वो भ्रांतियां आत्मा के विषय में भी है और पर पदार्थों के विषय में भी है। पर पदार्थों में अन्य जीवों की आत्माएं भी सम्मिलित है। स्व में अपनी आत्मा आती है, पर में शेष सारे द्रव्य आते हैं, दूसरे की आत्मा भी आती है। तो दोनों के विषय में भ्रांति को कैसे दूर करें? मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करने से ही मन आत्मा के साथ तालमेल में आ सकता है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर वो भटकन बन जाती है, वो भ्रांति हो जाती है, वो राग द्वेष का कारण बन जाती है। यानी बिलीफ अगर रॉन्ग होती है, यानी विश्वास अगर विपरीत होता है, मान्यता अगर गलत होती है, तो फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति भी गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण देते हैं, इफ योर बिलीफ सिस्टम इज faulty, then your conduct will also be in that direction. For example, at night time, if you consider a rope that is looking like a snake, if you believe that it is a snake, then your actions will be likewise. अगर आप रस्सी को सांप समझ लोगे तो आपकी चेष्टाएं भी जैसी सांप के प्रति होती है वैसी चेष्टा रस्सी के प्रति होगी। क्लियर? तो ये स्थिति तत्वों के प्रति जब होती है, यानी जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझा तो वैसा मानेगा नहीं, जानेगा नहीं तो मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो करेगा नहीं। तो सबसे पहले ये भ्रांतियां दूर करना आवश्यक है। और भ्रांतियों को दूर हटाने के लिए पूर्वाचार्य जो महान मैथमेटिशियंस थे, ये बात हम जानबूझ करके बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं कि वो आचार्य केवल रिलीजियस नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो मैथमेटिशियंस भी थे। उनके गणित को देख करके दंग रह जाओगे आप। इतना सूक्ष्म और इतना अचूक गणित कहीं संसार में मिल नहीं सकता। वैदिक गणित से एक कदम आगे श्वेतांबर गणित है, और श्वेतांबर गणित से कई कदम आगे उनके पास अंगों का गणित है, और यहाँ दिगंबरों के पास लब्धिसार ग्रंथ में पूर्वों का गणित है। इतना सूक्ष्म गणित है कि उस गणित को देख करके बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने स्वीकार किया था। बड़ी बड़ी सभाओं में जब ये वाचनाएं चलती थी, तो फिर एक बार किसी फॉरेनर ने कहा था कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ा, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, मैंने हर चीज़ पढ़ी, लेकिन ये जैन शास्त्रों का गणित जब मैं आज सुन रहा हूँ तो इसमें तो एक एक समय के परिणामों का वर्णन है जीव के, और उस परिणाम से क्या परिणाम होता है, रिजल्ट, उसका वर्णन है। इतना वर्णन मनुष्य की बुद्धि कर ही नहीं सकती। That non-Jain scholar, scientist, what is he saying? We can search his name also. What is he saying? He is saying that such minute descriptions, the shortest span of time,
which is also called samay, in that minimum span of time, what happens in our souls, what happens in our feelings, that has been mathematically described in these Jain scriptures. Definitely, this description cannot come from the mind of a human being. No human being can invent such mathematics. So I infer, वो वैज्ञानिक कहता है कि मैं तय करता हूँ, मैं निर्णय देता हूँ कि ऐसा गणित बताने वाला कोई ना कोई सर्वज्ञ अवश्य रहा होगा, जिसको जैन लोग केवली भगवान कहते हैं। इस गणित को देख करके मुझे विश्वास है कि केवली भगवान कोई ना कोई हुए होंगे अतीत में, क्योंकि ऐसा गणित किसी इंसान का दिमाग पैदा नहीं कर सकता। ये इतना बारीक गणित है। इवन टोडरमल जी जो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, वो एक अलग वस्तु है, लेकिन जो उन्होंने घुमटसार जीवकांड कर्मांड कांड आदि का अनुवाद किया वो अद्भुत है। वो भी उसके गणित का प्रसंग जब आता था तब कई बार एक वाक्य लिखते हैं, याको अर्थ मोकू भाषे नहीं है। 200 ईयर्स पुरानी भाषा बोल रहे हैं हम, ढूंढारी। याको अर्थ मोकू भाषे नहीं है, को विद्वान मिले तो समझ लीजिए। इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस गणित का। कोई ऐसा विद्वान भविष्य में मिल जाए जो इतना गणित समझता हो तो उससे समझ लेना। बहुत ऊंची बात है। और गणित के बारे में केवल एक बात कही जा सकती है कि इतिहास गलत हो सकता है, विज्ञान में चूक हो सकती है, क्योंकि एक वैज्ञानिक जो डिसीजन दे करके जाता है वो उसको फाइनल डिसीजन कभी नहीं बोलता। वो कहता है कि सम अदर साइंटिस्ट में find something else, may search something else, may invent something else, may discover something else। तो वो अपने निर्णय को अंतिम निर्णय नहीं कहता। आर्ट्स में त्रुटियां हो सकती है, वो चाहे फाइन आर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे और कोई आर्ट हो, डांस वगैरह कुछ भी हो, उसमें फ्लॉज हो सकते हैं, उसमें करेक्शंस पॉसिबल है। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी विधा है और एक ऐसी विद्या है जिसमें 2 और 2 कभी 2.00001 भी नहीं हो सकता, वो 4 ही होता है। 2 into 2 is equal to 4, not 4 point something, not 3 point something, it is accurately 4। तो जो शास्त्र गणित पर टिके हुए हैं वो असत्य कैसे हो सकते हैं? वो तो निश्चित रूप से अचूक ही होंगे। इसलिए उन शास्त्रों की श्रद्धा से अपना मन भ्रांति रहित हो जाता है, और मन भ्रांति रहित हो जाता है तो उसके आत्मा के साथ तालमेल बनता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है, फिर शक्ति के अनुसार सम्यक चारित्र भी होता है। जय शास्त्र। ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2ನ್ನು 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 3.9 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 4.1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 4 ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ
ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ತತ್ವಾತ್ರ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮನ ನಿಜ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನು ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ಹಂತದ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಯಮದ ಕವಚವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಂಯಮದ ಆವರಣ ಬಂದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಯಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳು ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲದ ಬೀಗದ ಕೈ ಇರೋದು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಯಮ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೊರತಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬಂದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಪರವಸ್ತುಗಳೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ಸಂಯಮದ ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ತವು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಯಮವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.